کوشش بھی کرتی ہوں، جو میرے ارد گرد لوگ رہتے ہیں نا، میں ان کا خیال رکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح ان کی ہیلپ کر سکوں. اچھا اسما، آج میرے نا ہسبینڈ کی برتھ ڈے ہے، آپ نے ان کو وش کرنا ہے اور ان کو گفٹ بھیجنا ہے. پہلی خاتون ہے جو دوسری خاتون سے کہہ رہی ہے کہ میری میاں کی سالگرہ پہ ہو تو مبارکباد دو. خواتین تو جل جاتی ہیں بھائی اس بات پہ. نہیں، میں تو بہت ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہوں اور خود ان کے لیے کیک بناتی ہوں. وہ تو ٹھیک ہے، تم تو بیوی ہو، لیکن میں کر دیتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. کیا نام ہے ہسبینڈ کا؟ فرید ہے ان کا نام. فرید. کتنے سال کے ہوئے فرید صاحب؟ یہ نہیں بتاؤں مجھے. خواتین چھپاتی ہیں بھائی. 40+ ہے ویسے. 40+. جی 40+ ہے. یہ مزیدار ہے. اچھا خاتون ہے نا، اس لیے آپ چھپا رہی. آپ کی طرف سے وش کرنا ہے عائشہ؟ اپنی طرف؟ میری طرف سے بھی اور سب کی طرف سے بھی، اور گفٹ بھی چاہیے مجھے ان کے لیے. گفٹ بھی چاہیے، ضرور دیتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کو گفٹ. بہت شکریہ عائشہ فون کرنے کا. اب کل فون مت کرنا ورنہ تو پکی اسٹیمپ لگ جائے گا کہ میری جاننے والی ہو. بہت شکریہ کال کرنے کا عائشہ کی طرف سے. جی فرید صاحب کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے دن، آنے والے لمحات اور بھی خوبصورت ہو. اور بی کے ایس کی ٹیم کی طرف سے ایک تحفہ آپ کی سالگرہ پہ آپ کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. شو شروع ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہا تھا کہ پتہ نہیں ہنسیں گے یا مسکرائیں گے آج، لیکن ایک وعدہ یہ ہے کہ خوشیاں ضرور پھیلائیں گے اور آپ سب کو جگائیں گے اور خود بھی جاگیں گے. دیکھتے رہیے جی باخبر سویرا. شو میں انشاءاللہ تعالی ہم پوری کریں گے. اور دونوں، جیسا آپ جانتے ہیں کہ میک اے وش فاؤنڈیشن میں ایسے بچوں کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں جو کسی نہ کسی قسم کی بیماری سے گزر رہے ہوں. مانور کی والدہ بھی مانور کے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آنے کا شو پہ. مانور کو تھیلیسیمیا ہے اور ربال کو اسپائن کا کینسر ہے، جس کا نام مجھے انہوں نے یاد کرانے کی کوشش کی، مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا. ربال کیا نام ہے اس کا؟ ایون سارکوما. دیکھیے کتنا مشکل ہے ایون سائیکوما. پھر میں نے پوچھا ربال اس کا مطلب سمجھاؤ، اس سے ہوتا کیا؟ کہتے ہیں وہ مجھے نہیں آتا، بس مجھے پتا ہے مجھے یہ ہے. تو انجیکشن کوئی ڈر ور نہیں لگتا، سب کرا لیتے ہو آسانی سے؟ واہ بڑے اسٹرانگ بوائے. اب کچھ بڑے ہو کے سوچا کہ کیا بننا ہے؟ کوئی خواب ہے کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں یہ بنوں گا؟ پائلٹ. ماشاءاللہ زبردست جی. اللہ کرے کہ یہ بڑے ہو کر ٹھیک ہو کر بالکل بڑا ہو اور اس کے بعد اپنے سارے کے سارے خواب، پائلٹ بھی بنو خوب، اور جو بھی کچھ کرنا ہے وہ بھی کرو، ہے نا؟ کیا آج کیا تمہاری وش کیا ہے؟ کیا پورا کرانا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے اشتیاق صاحب؟ آپ اگر ربال کے بارے میں بتلاؤں گا کہ ماشاءاللہ ویری بریو چائلڈ. اچھا. اینڈ فائٹنگ ود دا کینسر. اور سیم گوز ود مانور آلسو. ربال کی زیادہ تر ان کی خواہش تھی جی مجھے ریموٹ کنٹرول کار چاہیے جناب. ربال کی؟ جی ہاں. اچھا گاڑی بھی چاہیے. آج آپ لوگوں نے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج ان دو بچوں کی وشز جو ہیں آپ کا پروگرام پوری کر رہا ہے جی. اور دوسری جو تھی مانور جو ہے، جو عام طور پہ لڑکیاں ہوتی ہیں ڈال اینڈ ڈال ہاؤس جی، مطلب یہ بڑی کامن وش ہے. اور جو بچیاں ہمارے پاس آئی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنے غریب خاندان سے تھیں کہ بتلا رہی تھی کہ ہم نے کبھی کوئی ثابت گڑیا سے نہیں کھیلا، ٹوٹی ہوئی گڑیا جو مل جاتی تھی. تو بچیوں کی جو وش آ رہی ہے، ایک تو کیونکہ انہیں گھر سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈال اینڈ ڈال ہاؤس ابھی سے اس کے مائنڈ میں ہوتا. تو مانور کا جو تھی وہ ڈال اینڈ ڈال ہاؤس تھا. مانور تھوڑی ناراض ہے، اماں کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہے. مانور گڑیا چاہیے تو بات کرنی پڑے گی. اچھا مسکرا تو دو. نہیں مانور اصل میں ہمارے یہاں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے جس پہ ہم ابھی ٹی وی پر آ رہے ہیں. تو مانور اپنے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے ذرا کہہ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، میں تو ادھر بیٹھی ہوں، میں ادھر کیسے آ رہی ہوں. ٹھیک. تو مانور اور ربال کی تو انشاءاللہ تعالیٰ خواہشات ہم پوری کریں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جتنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کی خواہشات بھی پوری کریں. آپ سے بات ہو رہی تھی بلکہ صاحبہ، کچھ آپ شکوہ کرنا چاہ رہی تھی، ابھی کرنا چاہ رہی ہیں یا بعد میں؟ جب بھی آپ کہیں. اچھا نہیں کر دیں. بلکہ صاحبہ نے خاص مجھ سے کہا کہ مجھے سارن صاحب سے شکایت کریں. سارن صاحب سے نہیں کرنی ہے، میں نے صرف اجازت لی ہے. ان کی اجازت لی ہے. اچھا. میں نے کہا کہ کھارا در علاقے میں ہم رہتے ہیں جی. کھارا در میں برساتی نالا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بیچ دیا گیا 4 کروڑ میں. ٹھیک ہے. اس میں 400-500 بوریاں سیمنٹ کی ڈال دی گئی. ٹھیک ہے. کھارا در کے سارے مکین لکھ کے آئے کہ ایدی صاحب یہاں پہ اگر پانی بھر جائے گا، اور یہ پانی سیدھا نیٹی جیٹی دریا میں جاتا تھا برساتی نالے کا، تو ہم لوگ نے عدالت میں کیس کر دیا. تو ہم نے کافی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا کہ یہاں یہ برساتی نالا ہے، یہاں سے
पूरे इलाके का पानी बाहर जाता है ना, तो अभी जो हाल हमारा बुरा हुआ है ना, डेंगू का बाप भी आएगा, डेंगू भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन उधर 6 मंजिला बिल्डिंग बन गई, दुकानें बन गई और एदी साहब और हम हार गए। तो अदालत में लोग इसलिए जाना पसंद नहीं करते हैं, हमने तो पैसे भी इतने ही दिए थे लोगों वकीलों को। तो ये कौन सा दुनिया का कानून है कि किसी के इलाके में बरसाती नाला खरीद के उस पर 6 मंजिला इमारत बना ले। और अदालत ने हमारे खिलाफ फैसला भी दिया, उधर मिठाई बटी और उधर एक दूसरे को हार पहनाए गए कि यदि हमारे सामने क्या बेचता है। इतनी तो हमारी माशाल्लाह कानून अच्छा है। अदालत के फैसले पे तो मैं कोई राय नहीं दे सकती, लेकिन जो हुक्मरान नहीं, जो बरसाती नाला बेचा गया है उसके लिए तो फैसला दे सकती हो ना। बिल्कुल कि जो हमारे इलाके का, कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो हुक्मरान इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, वो जीत गए। उनकी बिल्डिंग भी बन गई 6 मंजिला और पानी भरा भरा। आप देखिए अभी जो लोग शो देख रहे हैं वो कॉल करके कहीं और आपकी बिल्डिंग खड़ी करा देंगे, आप फिक्र नहीं करें। भले करा दें, यहाँ तो नाले बिक जाते हैं, यहाँ तो ककड़ी ग्राउंड में 50-100 दुकानें भी बन गई हैं और है ना बिक गई हैं। पता नहीं किस बड़े आदमी ने बनाया है, उसका अल्लाह भला करे। लेकिन हमने 10 बाय 10 की जगह मांगी थी कि हमें रोड के ऊपर एक जगह दे दो 10 बाय 10 की ककड़ी गार्डन में, के बाहर रोड पे हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसके बारे में और भी बात करेंगे। जब इतनी शिकायत हो मुल्क से और उसी मुल्क में इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं, लेकिन और बात करेंगे आपसे इस बारे में। एक कॉलर है हमारे साथ। जी कौन? हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं समरीन बात कर रही हूँ कराची से। समरीन का पहले दिन वाली कॉलर तो नहीं है, फिर मुझ पे ठप्पा लगेगा? नहीं, मैं फर्स्ट डे और फर्स्ट टाइम आपको कॉल किए। मैंने आपको पहली दफा आज आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका प्रोग्राम। थैंक यू समरीन। मैं पहले भी आपके गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश करती है जब आप हुआ करती है, मगर कभी आज तक कॉल ही नहीं मिली। तो मेरी बहुत बड़ी डिजायर थी कि मैं आपसे बात करूँ। थैंक यू। देखो आज वो मेक अ विश वाले आए ना, इसलिए सबकी विशेस पूरी हो रही हैं। क्या कहना चाहोगी, कौन सा काम है ऐसा जिसके लिए तुम अपना सब कुछ वक्त कर सकती हो समरीन? यही होता है कि मैं अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि गरीब बच्चों को अगर हम तालीम दें ताकि वो मुल्क को एजुकेट करके हमारा मुल्क का नाम तरक्की कर सके। जिस तरह चाइना में 100% एजुकेशन है, तो इस तरीके चाइना तरक्की भी कितना कर रहा है। सही। तो कुछ किया है अभी तक समरीन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए? बहुत तरक्की करेगा। अच्छा समरीन, कुछ किया है अब तक? कुछ किया है अब तक इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो ख्वाब है आपका? जी कर रही हूँ मेरा ये ख्वाब। और मैं ये आपके तीनों गेस्ट बहुत अच्छे गेस्ट हैं और खासकर बिल्किस सेठी और ये अशफाक साहब हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, बर्नी साहब भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किसी बच्चों को रखता है, कौन सा किसी को औरतों को रखता है, या फिर जो है मेंटली रिटार्डेड है उनको कौन रखता है, मगर इन लोगों ने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बनी साहब एक चीज थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं जी कि अभी जिन्होंने कॉल किया है, मैं ये कहता हूं कि किसी की विश पूरी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मेक ए विश के अंदर ही आए और करें। दुनिया में एक दिन मनाया जाता है तो वर्ल्ड विश डे कहलाता है, और वहाँ पे ये होता है कि चाहे हमारे खानदान में, हमारे घर के करीब मोहल्ले में, या हमारे ऑफिस में, या हमारे स्कूल में किसी हम एक ऐसे बच्चे को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो कोई ख्वाहिश उसकी हम पूरी कर सकते हैं, तो वो ख्वाहिश लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान में भी आज हम ये डिसाइड कर लें और आपके प्रोग्राम से जो लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो डिजर्व करता है और आपकी ख्वाहिश, आपको अंदाज़ा नहीं है ये कितनी इन बच्चों को खुशी होती है जब इनकी ख्वाहिश को हम पूरा करते हैं। और एक बच्चे की अमेरिका में ख्वाहिश पर $50,000 लगते हैं और हमारे यहाँ इस बच्ची को हम एक डॉल देते हैं, तो खुशी इन दोनों की बराबर है। बिल्कुल, देखिए मिकदार अमाउंट में कितना फर्क है और खुशी कितनी बिल्कुल बराबर है। बनी साहब आपसे एक बात करना चाहूंगी कि कश्मीर सिंह का एक खबर, एक वाकया जो हम सबको पता है कि 35 साल की सजा हुई थी और उसके बाद आपने उन्हें यहाँ से आज़ाद करके भेजा था, लेकिन उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज भी चली थी, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, कश्मीर सिंह को एक तो पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सोचें हैं ना उनको हमने महदूद किया हुआ है, इनको ज़रा वसी करें आप। जब इंसानियत के लिए काम किया जाता है ना तो उसमें कश्मीर सिंह और फला सिंह और ढमकाना सिंह ये नहीं देखा जाता कि कौन से मजहब से है, कौन सी। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात ये है वो बुरा आदमी था, बुरा काम किया था, सब कुछ ठीक है, सजा मिल गई। सजा नहीं मिली, बहुत ज्यादा सजा मिली उसको। मसला ये है आप कौन है? आप कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम रहम दिल हैं, हम माफ करने वाले हैं। जब आप में ये खूबियां हैं तो नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं, जब आप ये कहते हैं
तो आप इसको मानते क्यों नहीं हैं? उसको सजाए मौत हुई थी, हम उसकी कतई सजाए मौत के खिलाफ नहीं थे। अच्छा। वरना हम 35 साल पहले आवाज उठाते उस पे, हमने नहीं उठाई। 35 साल के बाद जब अंसार भाई जो हैं वफाकी वजीर बने ह्यूमन राइट्स के, तो उनके इल्म में ये चीज आई कि कोई शख्स इस तरीके से जेल के अंदर है जिसको 35 साल हो गए, और उसमें वैसे इदारे का उसमें कोई काम नहीं था, उसमें एक हुकूमती सतह पे काम हुआ था उसके अंदर। तो उसको वहां से रिलीज कराया गया, और रिलीज जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया, उनके ऑर्डर से रिलीज हुआ। कोई इसमें कोई हमारे हाथ की कोई चीज नहीं कराई, बिल्कुल। उसको रिलीज कराया, रिलीज करा के भेज दिया गया। वहां तक कौम बड़ी खुश थी कि वाकई पाकिस्तान का नाम ऊंचा होगा और दुनिया में, और वाकई हुआ। ये एक हकीकत है, दुनिया उसको मानती है। हमारे यहाँ हर अच्छी चीज को बुरा कहा जाता है, वो वाला हिसाब है। तो वो चला गया। जाने के बाद एक डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जिसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इल्म नहीं था। सही। वो हैं तो इंडियंस बहुत, वो हमारी तरह जज्बात से नहीं खेलते, वो दिमाग से खेलते हैं। सर आपको यहाँ थोड़ा सा मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, ये किसकी डेड बॉडी थी और ये क्या था, इसके बारे में भी जानेंगे। एक जरूरी ब्रेक लेनी है और इसके बाद आपसे वापस मुलाकात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो हम आपको आज पैकेजेस दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंतहाई शौक की, आपको ऐसे पाकिस्तानी हीरो से मिलवा भी रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए ये काम किया। लेकिन जैसे भी बर्नी साहब भी बता रहे थे ना कि जब आप इस राह पे निकलते हैं कुछ करने के लिए या कुछ सीखने के लिए, तो आप ये सोच नहीं रखते कि कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं है। इसीलिए हम आपको इंटरनेशनल लीडर्स के बारे में भी दिखाते आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, जिनको अभी आपने देखा, आप लोग जानते होंगे, ग्रामीण बैंक, ऐसा फॉर्मूला जिसने दुनिया की गरीब के हालात बदल दिए, उसको बनाने वाले साहब। तो इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बनी साहब, आप बात कर रहे थे और मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया था। उसके बाद आप डेड बॉडी के बारे में बता रहे थे। डेड बॉडी है, उसके बाद चंद पेड होस्ट जो है हमारे यहाँ, ठीक है, उन्होंने उसको इशू बनाया। अच्छा। और हमारे यहाँ जब एक कोई आवाज मारता है सारे टीवी चैनल उसके पीछे लग जाते हैं, वो सारे पीछे लग गए और लोगों का माइंड चेंज कर दिया। हाँ। और ये सब इसको नेगेटिव उसमें ले गए। जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी हमारी पाकिस्तान के हवाले से, उसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया। बहरहाल वो हमने जो कुछ किया था पाकिस्तान के लिए किया था, अगर नहीं चाहिए तो इनकी मर्जी थी। हाँ। उसके बाद हुआ ये कि प्रॉब्लम बन गई। मुझे आप ये बताएं, लोग अगर इसके जाने पे इख्तलाफ करते हैं तो उनके आने पे जो उसके बाद कैदियों का आने का एक सिलसिला शुरू हो गया वहां से पाकिस्तानी, उस पे इख्तलाफ क्यों नहीं कर रहे? वो तो उसी के जाने की वजह से शुरू हुआ। दोयम, जब हमारे कैदी इंडिया में बंद होते हैं तो हम कहते हैं वो मजलूम है और उन्हें छुड़वा लिया जाए। उनके कैदियां बंद हो जाए तो हम कहते हैं ये हिंदू है, ये इंडियन है। इन सोचों को हमें खत्म करना है। खलील चिश्ती साहब प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी के, वो इस वक्त वहाँ जेल के अंदर बंद है, अजमेर जेल के अंदर। उस पे कोई मीडिया इशू नहीं बना रहा। हम चाह रहे हैं कि उसकी आवाज उठनी चाहिए, सामने आना चाहिए। हम उसके लिए रिलीज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब कोई साथ देने वाला नहीं है। अब आपने हमारे चैनल पे बैठ के कह दिया तो इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि आपको बहुत सारे साथी मिले जो आपको इसमें ज्वाइन करें। बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, मिलिएगा उनसे जरूर। नहीं जाती हूँ, तोहफे लेके जाते। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे एक आप लोगों से जाती सवाल कि बिल्किस आपा, जिस तरह इतना आप लोग अपने इस जज्बे के पीछे लगे हुए हैं, इस पैशन के पीछे, तो ये घर पे एक दूसरे को, एक होता है ना, एक फैमिली बॉन्डिंग होती है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि आप जैसे लोग दूसरों के खानदानों को पूरा करते करते कहीं अपने खानदान को अधूरा तो नहीं छोड़ देते? नहीं, मेरे खानदान में ईदी साहब से हो जाती है मुलाकात, आपस में बहुत इत्तेफाक मोहब्बत है। अच्छा, अभी हम थोड़े दिन पहले बोल फिल्म भी देख के। अच्छा, बोल फिल्म देख के चले, हमने मार्केटिंग भी कर दी मूवी की। हाँ, अच्छा, पूरा दिन हमारा अपने लिए होता है। बिल्कुल, हम एक आध घंटा दूसरों के लिए निकाल लें। हाँ, तो जस्ट टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक यू कैन ऑलवेज मैनेज इट। अच्छा, वो स्क्रीन पे मुझे लगता है कोई SMS भी आया कि ये क्या पड़े हुए आसपास, इसलिए मैं जल्दी से इस बात पे आ जाऊं जी कि हम मेरे जो साथ में सीधे हाथ पे ये आप गाड़ी देख रहे हैं, रिमोट कंट्रोल गाड़ी है ना, ये आपको नजर आ रही है अच्छे से? ये मैं जरा इसका शॉट बनवा के दिखा दूं, मेरी शक्ल नजर आए ना आए, खैर है। तो ये है जी एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी, और यहाँ पे आपको एक बार्बी डॉल नजर आ रही है। विद मेक ए विश ड्रेस पहने, देखिए